So this one, starting with organic, the first very basic thing is we are going to talk about formulas. ठीक है कि ऑर्गेनिक के जितने भी formulas हैं वो सारे आपको लिखने आने चाहिए. उसके अंदर है कि the different types of formula. The first one is obviously your molecular formula, जो आप लोगों को वैसे ही पता है कि what's a molecular formula? कि it just tells you the total number of atoms in a molecule. Just like glucose is that C6H12O6. Okay, that's the molecular formula. It tells you the total number of atoms. Okay, you have to know okay, what every formula means. Because exams can they are very specific about what type of formula that you're talking about. Okay, then you've got. Then you've got other types of formula that they are known as your structural formulas. और उनकी फिर different versions होती हैं of those structural formulas. Structural formulas basically tell you how the atoms are bonded to each other. So this is the one that's more important, and mostly equations के अंदर अक्सर molecular formula use हो होता है, but structural formulas are the ones that are more important, and you should know how to write the different types of structural formula. So it's any formula which gives you information about the arrangement of the atoms. कि वो सारे आपस में किस तरह जुड़े हुए हैं. And structural formulas have, so when the question reads के write the structural formula, I mean that could mean several things as well. क्योंकि आपके structural formula के अंदर there is a thing called a fully displayed formula. That's a type of formula where you have to show every atom, every bond, everything has to be shown. ठीक है, but remember that's one version of a structural formula. ठीक है, structural formulas can mean many different types of formulas. So that's one version of what a structural formula stands for. As a fully displayed के अंदर what they mean is कि you have to show every single, जब भी question के अंदर लिखा होता है, अक्सर लिखा होता है कि fully displayed, तो उसके अंदर you have to show every single atom and bond. ठीक है, एक एक बॉन्ड उसके अंदर ना आपको शो करना होता है, एक एक एटम आपने एक्सप्लिसिटली लिखना होता है इन अ फुली डिस्प्लेड फॉर्मूला. ठीक है, a lot of people make that mistake, they don't read the question properly. तो जहां पे भी fully displayed लिखा होगा, that means you have to show every single detail about the structure of the molecule. तो इधर से स्टार्ट करते हैं. लेट्स ट्राई एंड ड्रॉ सम फुली डिस्प्लेड फॉर्मूलाज. उसके अंदर एक चीज आपको पता होनी चाहिए कि who makes how many bonds. For example, if something is in group 4, and usually it's mostly carbon that we are talking about, silicon भी बीच में आ सकता है. मतलब जो भी हम फॉर्मूलाज डील करेंगे उसके अंदर मोस्टली कार्बन ही होगा, सिलिकॉन हार्डली एक दो केसेस में आएगा. दे मेक 4 bonds. ठीक है, so remember कि anything in group 4 is going to be making 4 bonds. Anything that's in group 5 is usually making, like nitrogen or sometimes phosphorus, they are usually making 3 bonds. Then you've got elements in group 6. तो group 6 वाले जो elements होंगे, they would be like oxygen. कभी कभार सल्फर भी बीच में किसी फॉर्मूला में आ जाएगा. They would be making 2 bonds. And you've got group 7 elements. उनको सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है most of the time, so it's all the halogens, fluorine, chlorine, bromine, etc. Iodine भी बीच में डाल दो. They usually make just 1 bond. I'm strictly using the word usually because sometimes they can actually make more than the bonds that are listed over here, because they can expand the octet, especially period 3 वाले जो elements हैं जिनका third shell होता है. Third shell के अंदर maximum 18 electrons आ सकते हैं. So if you have sulfur can make a lot more than 2 bonds. Because उसका जो third shell है ना, it is much bigger in size. It can accommodate more electrons.
but just for simplicity follow this rule. अब इसमें ये कि रिमेंबर फुली डिस्प्लेड एक एक बॉन्ड, तो पहले तो वो पहली चीज है कि आपको ना इफ यू लुक एट एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, तो आपको ना उसको देख के ना आपको पता लग जाना चाहिए कि आपने गलत ड्रॉ किया है, सही ड्रॉ किया है, क्या मसला है. तो फॉर एग्जांपल इफ आई ड्रॉ अ मॉलिक्यूल, ठीक है, और अच्छा, आई एम ड्रॉइंग एन इनकरेक्ट मॉलिक्यूल. अच्छा, एच मैंने नहीं लिखा हुआ, एच ओनली मेक्स वन बॉन्ड. सो here's my molecule. अब दिस मॉलिक्यूल, ये आपको ना देख के पता लग जाना चाहिए कि ये जो मैंने ड्रॉ किया ना मॉलिक्यूल, दैट्स इनकरेक्टली ड्रॉन. व्हाई इज इट इनकरेक्टली ड्रॉन? कोई मुझे वैसे जल्दी से बता दे कि इसे मैंने क्या कहा. Carbon can only make 4 bonds. ठीक है, सो फॉर एग्जांपल दिस वन, मतलब आपको देख के पता लग जाना चाहिए कार्बन इज नॉट सपोज टू बी मेकिंग 5 बॉन्ड्स, इट शुड बी मेकिंग 4 बॉन्ड्स. तो अभी हम ये रैंडमली कर रहे हैं, तो लेट्स से मैं इसका ये एक एच हटा देता हूँ. अब इस कार्बन का जो स्ट्रक्चर है ना वो ठीक हो गया. दिस कार्बन इज फाइन. इसके साथ भी वही मसला है कि इट्स मेकिंग टू मेनी बॉन्ड्स. सो आई एम गोइंग टू रब दिस ऑफ. ठीक है, और फिर Nitrogen. ठीक है, यहाँ पे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों के साथ मसला है कि नाइट्रोजन इज सपोज टू बी मेकिंग 3 बॉन्ड्स. 3 ठीक है, bonds. तो वो उसका एक थर्ड ड्रॉ कर लो, एक एच इधर भी लगा देते हैं. तो ये मैं बस रैंडमली कर रहा हूँ. नाउ दिस मॉलिक्यूल इज कंप्लीटली फाइन. ठीक है, इसकी हर चीज जो है वो करेक्ट है. तो दैट्स द फर्स्ट थिंग. ठीक है, दैट्स द फर्स्ट थिंग, वेरी बेसिक थिंग. बाय जस्ट लुकिंग एट द एटम यू शुड बी एबल टू फिगर आउट कि आपने मतलब इतनी दफा प्रैक्टिस करो कि आपको सेंस बन जाए कि हाँ, ये देख के पता लग जाए गलत किया हुआ है. ठीक है, so this is a fully displayed formula. Why? क्योंकि I've shown every single atom and I've shown every single bond. OH को भी ना मैंने अलग अलग करके लिखा हुआ है. I have separated them and I've put a bond between them. तो इस वाले केस में हर चीज आपको क्लियरली नजर आ रही है. मूविंग टू, अब मैं इससे ज्यादा ये नेमिंग करेंगे ना, थोड़े से मॉलिक्यूल्स ड्रॉ करेंगे, तो उसके अंदर हम थोड़ी सी ज्यादा इसकी रेपिटेशन करेंगे, थोड़ी सी और ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे. सो जस्ट टू गिव यू एन आइडिया व्हाट अ फुली डिस्प्लेड फॉर्मूला इज. ठीक है, सो दैट्स वन वर्जन ऑफ अ स्ट्रक्चरल फॉर्मूला. तो अगर वो क्वेश्चन में कहता है ना स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ड्रॉ करो, तो अगर ये ड्रॉ कर लो ना तो कोई मसला नहीं है, वो सही होगा. इस फॉर्मूले के साथ सिर्फ एक मसला है, इट टेक्स अप टू मच स्पेस. तो अक्सर जो आपके पास पेपर का जो क्वेश्चन होता है ना उसके अंदर यू नॉट गिवन दैट मच स्पेस. तो उसको सॉल्व करने के लिए, उस मसले को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि इसको अगर आपने फुली डिस्प्लेड शो करना है, यू नीड अ लॉट ऑफ स्पेस. अगर तो स्पेस अवेलेबल है तो फिर पूरा ड्रॉ कर लो. अगर नहीं अवेलेबल, सो देयर इज अनदर वर्जन व्हिच इज also a structural formula, and that's your condensed formula. अच्छा, condensed फॉर्मूला के अंदर आप क्या करते हो कि यू डोंट शो ऑल द बॉन्ड्स, यू डोंट शो ऑल द एटम्स. व्हाट यू इंस्टेड डू इज कि आप कुछ बॉन्ड्स बीच में से गायब कर देते हो. एज एन एग्जांपल, इफ आई हैव दिस मॉलिक्यूल. अच्छा, कंडेंस्ड लिखने का मैं तरीका भी बता देता हूँ. दैट्स अच्छा, सो लेट्स से दिस इज अ फुली डिस्प्लेड formula of a particular molecule. ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड है. तो फुली डिस्प्लेड नहीं है क्योंकि अगर मैं OH का भी बॉन्ड शो करूं, नाउ इट्स अ फुली डिस्प्लेड फॉर्मूला. नाउ हाउ डू यू राइट अ कंडेंस्ड फॉर्मूला? द वे यू राइट अ कंडेंस्ड फॉर्मूला इज कि आपने ना बस वो किसी एक एंड से शुरू हो जाओ, किसी भी एंड से. यूजली आसान काम है, आप राइट टू लेफ्ट भी जा सकते हो, लेफ्ट टू राइट भी जा सकते हो. ठीक है, सो देयर इज नो स्पेसिफिक रूल. फॉर एग्जांपल, मैं इस डायरेक्शन के अंदर जा रहा हूँ कि आई स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, कार्बन लिखता हूँ, और मुझे बताओ इस कार्बन के साथ कितने एच है. दिस 3. कार्बन हैज 3 एच, तो इसको मैं CH3 लिख दूंगा. ठीक है, अगले कार्बन पे आ जाओ, उसके साथ कितने एच है, उसके साथ CH2. ठीक है, तो दैट्स CH2.
और फिर उससे अगले, अच्छा इस वाले पे आके फिर वो होता है कि ब्रांचेस आ जाती हैं। अच्छा ब्रैकेट्स दिस, में। हाँ तो दिस कार्बन हैज 1H, और ब्रांच जो होगी ना, जो साइड पे जो भी चीज निकली होगी, दैट वुड बी पुट इन ब्रैकेट्स, एंड देन फिर लास्ट कार्बन आ जाता है, वो CO है और फिर OH है, या COOH, ठीक है। सो दिस इज योर कंडेंस फार्मूला। अब मसला सिर्फ ये कंडेंस फार्मूला लिखने का कि यू हैव टू बी, मतलब कंडेंस फार्मूला लिखना थोड़ा मुश्किल होता है स्टार्ट के अंदर, क्योंकि इसके अंदर आपको पता ही नहीं लगता कि अगर आपने कोई गलती की है ना, तो वो आप नोटिस नहीं करोगे, क्योंकि यू कांट रियली काउंट द बॉन्ड्स। तो इसको लिखना थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक होता है, अनलेस अनलेस इट्स अ वेरी सिंपल मॉलिक्यूल, देन यू कैन राइट द कंडेंस फार्मूला वेरी इजीली। लेकिन डायरेक्टली कंडेंस फार्मूला लिखना थोड़ा सा मुश्किल होगा अगर इफ इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड मॉलिक्यूल, बिकॉज इट्स हार्डर टू एक्चुअली फिगर आउट हु इज मेकिंग हाउ मेनी बॉन्ड्स। ये हम इसमें चीजें ऐड कर देते हैं कि कंडेंस फार्मूला के अंदर दिस इज ब्रांचेस और रिटन इन ब्रैकेट्स। अच्छा then there's some other things about condensed formulas, and that is कि C double bond O and H, this would be written as HO, CHO, ठीक है। ये एक चीज याद रखना कि इट्स रिटन एज CHO, क्योंकि अल्कोहल से उसको डिफरेंशिएट करना है। अगर आप इसको COH लिख दोगे ना, इट वुड लुक लाइक एन अल्कोहल, तो इसलिए उसको आप CHO लिखते हो। इस पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप विच इज एन एल्डिहाइड, उसको आप इस तरीके से लिखते हो। तो एक और एग्जांपल कर लेते हैं जस्ट क्विकली के अच्छा let's say I have this molecule and I want to write the condensed formula for this. इसको दोबारा CHO लिखना है, लेकिन क्योंकि आप लेफ्ट साइड पे, तो ये उल्टा करके लिखना है। इट्स गोइंग टू बी रिटन एज CHO, मतलब राइट साइड पे होता तब भी आप CHO लिखते हैं, लेकिन सीधा करके लिखते हैं। अच्छा दैट्स द फर्स्ट वन। This one is CH followed by a CH3 in brackets, and then you've got what do you have? You have C, और उसके साथ ब्रांच है OH की, और एक ब्रांच CH3 की है, followed by another CH3. तो इसको आप CH3 ब्रैकेट ट्वाइस भी लिख सकते हो, इट वुड मीन द सेम एग्जैक्ट थिंग। ये क्लियर है कंडेंस फार्मूला? यस सर। ठीक है। अच्छा नाउ अच्छा ये तो कंडेंस हो गया। नाउ द थर्ड वन, अगेन दैट्स अ वर्जन ऑफ, ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूले की वर्जन है। कभी कभार ना लोगों को इसके साथ भी मुसीबत होती है कि इतने ज्यादा एटम्स लिखना ना, और टाइम लगता है, ठीक है। और कंडेंस फार्मूला के साथ मसला ये है कि एग्जैक्टली फिगर आउट करना, दैट्स काइंड ऑफ हार्ड, कि कौन कितने एटम्स बना रहा है। तो टाइम बचाने के लिए there's another version which is known as the skeletal formula. अच्छा skeletal formula में क्या करते हो? skeletal formula में आप कुछ शो ही नहीं करते, ठीक है। आप सिर्फ क्या शो कर रहे होते हो? You only show carbon and carbon bonds. They are the ones that are shown, ठीक है। किसी ने मैसेज तो नहीं किया? क्वेश्चन तो किसी का नहीं है? अच्छा दिस वन, सो skeletal formula के अंदर you only show carbon carbon bonds.
that's one thing कि आप उन bonds के अलावा you're not showing anything. Plus you show any functional group. Well, the functional groups, I hope everyone knows कि anything that's apart from the carbon chain, carbon और H की जो alkyl chain चल रही होती है उसके अलावा जो भी चीज़ है that's a functional group. So you only show these carbon-carbon bonds. So if you have a molecule and the molecule is, let's say we have this molecule double bond OH, और फिर यहाँ पे ना there's a इस carbon के साथ 2H है, this one has, so this one has 3 H's, इसके साथ एक H है, इसके साथ एक H है, ठीक है. अच्छा, for example, I have this molecule and I want to show the skeletal formula of this. The skeletal formula would be कि आपने सिर्फ bond show करने हैं. So what I'm going to do is I'm going to just mark the carbon atoms with dots. मतलब although वो dots होते कोई नहीं है, लेकिन बस imagine करो वो dots हैं, ठीक है. The carbon atoms are these dots. Zigzag line बनानी है, उस line के जो भी points होंगे they're basically carbon atoms. So starting with the first one, ठीक है, put a dot. So that's the bond between the first two carbon atoms, ठीक है. Followed by कितने, 1 2 3 4 line में. So that's one. ये third पे आ गए and this is the fourth one. So इसके जितने भी points हैं, ठीक है, this is one, this is the second, this is the third, this is the fourth. These are all your carbon atoms, ठीक है. तो ये 4 carbon atoms line में, ये 4 carbon atoms line में. Straight line इसलिए नहीं draw करते क्योंकि ये dots असल में होते नहीं है, फिर वो आपको सिर्फ एक straight line नजर आएगी. अच्छा, on the second carbon atom from the left, यहाँ से there is a branch that's coming out. और इस कार्बन आटम से ना 2 और कार्बन आटम्स कनेक्टेड हैं. तो सेकंड कार्बन आटम से, तो इधर से मैं ऊपर की तरफ चला जाता हूँ, ठीक है. सेकंड वाले के साथ there are 2 more carbon atoms attached. तो that's one, that's the second one, ठीक है, वो attached है. और अब बीच में ना वो आप सारे फिट कर दो कि फंक्शनल ग्रुप्स कौन से हैं. ये इस कार्बन आटम के साथ there was an OH group attached, तो वो आप शो कर दो. इस कार्बन आटम के साथ there is a double bond O and OH attached, तो वो आप शो कर दो. So that's how you write skeletal formulas. कि आप सिर्फ वो कार्बन आपस में किस तरह कनेक्टेड है, zigzag lines ड्रॉ करते हो. Every point of that line is जो end है उस line का, that's a carbon atom. तो 4 carbon atoms, that's 1 2 3 and 4, और 2 ऊपर है तो second वाले से 2 carbon atoms. So that's your skeletal formula. You have to be good at it and you have to know exactly when to make what. Question के अंदर वो बड़े specific होते हैं कि कौन सा फॉर्मूला बनाने को वो कह रहे हैं. ये क्लियर है सारों को? सर वन क्वेश्चन सर, अगर वो खाली स्ट्रक्चरल फॉर्मूला का पूछे तो हम तीनों में से कोई भी बना सकते हैं? हाँ, अब वही क्वेश्चन है कि जब वो, क्योंकि अक्सर वो कहता है क्वेश्चन के अंदर कि स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ड्रॉ करो, ठीक है. तो होता ये कि ये जो किधर गया फुली डिस्प्लेड, इसकी जगह होती नहीं है. अगर तो उन्होंने सिर्फ एक लाइन दी हुई है ना, एक छोटी सी लाइन दी हुई है, तो यू कांट मेक दिस. लेकिन अगर बनाओगे ना तो गलत नहीं होगा, ठीक है. दैट्स योर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला. तो जब वो उन्होंने थोड़ी सी जगह दी होती है ना, देर एक्सपेक्टिंग दिस वन कि आप ये बना दो, ठीक है. क्योंकि जो आपका फुली डिस्प्लेड फॉर्मूला है और आपका जो स्केलेटल फॉर्मूला भी है ना, ये स्पेस मांगते हैं. तो अक्सर उन्होंने स्पेस दी भी नहीं होती. लेकिन अगर आप इन दोनों में से कोई एक बनाओगे ना तो गलत नहीं होगा, ठीक है. लेकिन अगर क्वेश्चन में स्पेस सिर्फ एक लाइन की दी हुई है तो दे बेसिकली लुकिंग फॉर दिस वन. क्लियर है बात? यस. अच्छा, अब आगे मूव करते हैं कि ये सारा हम नेमिंग के अंदर प्रैक्टिस करेंगे, पास पेपर्स वगैरह भी करेंगे. द नेक्स्ट थिंग इज कि नेमिंग करें या आइसोमर्स करें. मेरे ख्याल से आइसोमर्स पहले कर लेते हैं, ठीक है. अच्छा, सो लेट्स talk about isomers.
अच्छा, एक उनके अंदर और फॉर्मूला है दैट्स नोन एज द थ्री डायमेंशनल फॉर्मूला, वो खैर आइसोमर्स में हम पढ़ेंगे। थ्री डायमेंशनल फॉर्मूलाज हैव टू डू विद, बल्कि हम यहाँ पे कवर कर ही लेते हैं कि अच्छा, थ्री डायमेंशनल फॉर्मूलाज के अंदर बेसिकली दे लुकिंग फॉर द एग्जैक्ट शेप। तो आपको ना थोड़ा बहुत वो शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स वगैरह का पता होना चाहिए कि विच कार्बन कार्बन मेक्स, जब कोई चीज फोर बॉन्ड्स बना रही होती है तो क्या शेप होती है, दैट्स थोड़े बहुत मैं बता देता हूँ कि फोर बॉन्ड्स वाली शेप क्या होती है, दैट्स टेट्राहेड्रल। अच्छा। ठीक है। uh, और ये बनाना मुश्किल है, तो वो पूरे मॉलिक्यूल की शेप तो बनाने को कभी कहेंगे ही नहीं, क्योंकि लोगों से बनाया नहीं जाएगा। अच्छा, थ्री बॉन्ड्स होता है जब कार्बन मेक्स थ्री बॉन्ड्स, थ्री बॉन्ड्स नहीं एक्चुअली, इधर मैं हाइब्रिडाइजेशन लिख देता हूँ। व्हेन कार्बन इज बॉन्डेड टू थ्री एटम्स कर लो, ठीक है। व्हेन समथिंग इज bonded to four atoms, that's tetrahedral. When something is bonded to three atoms and there are no lone pairs, ठीक है, क्योंकि वो डबल बॉन्ड्स भी होते हैं which are counted as one, तो शेप जो होगी वो फैन शेप्ड होगी, ट्राइगोनल प्लेनर। ये वो है कि कार्बन जब डबल बॉन्ड्स बना रहा होता है, दिस इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम एंड दिस इज योर sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। फिर आपके पास बल्कि इसका ना एक चार्ट है मेरे पास, सिंपली वो सारा डिटेल लिखने की बजाय, जिसकी मैं वन सेकंड में इधर पेस्ट ही कर देता हूँ चार्ट, एंगल्स और शेप्स वगैरह। ठीक है, वो मैं आप लोगों को सेंड भी कर दूंगा, जिसकी भी वन सेकंड। कहाँ पे? अच्छा, सो दिस वन इधर साइड पे कर लेते हैं। अच्छा, दिस वन, शेप्स आपको पता होनी चाहिए मॉलिक्यूल्स की, कि अगर गलती से ना वो थ्री डायमेंशनल फॉर्मूला उन्होंने पूरा तो ड्रॉ करने को नहीं कहेंगे, कभी कभार बिट्स एंड पीसेस आ जाते हैं, एमसीक्यूज में आ जाते हैं। वो कहते हैं कि चार मॉलिक्यूल्स बने होते हैं, उनकी शेप बनी होती है, एंड दे माइट आस्क यू टू फिगर आउट कि कौन सी वाली शेप सही है। तो ये शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स से रिलेटेड है, सो आई जस्ट गिव यू अ ब्रीफ ओवरव्यू के दो बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है, एंड इट डजंट रियली मैटर। A double bond and a triple bond is considered to be, shapes के अंदर it's considered to be one thing, ठीक है, कि अगर यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, so that's just, you think of it as one single electron density, ठीक है। तो the angle would be 180। अगर थ्री बॉन्ड पेयर्स हैं, ठीक है, which means कि यहाँ पे डबल बॉन्ड भी हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, as long as it's one entity, ठीक है, one electron density। The molecule would be trigonal planar, the angles would be 120। फिर उसकी डिफरेंट वर्जन होती हैं कि आपके पास एक साइड पे लोन पेयर होता है और दो बॉन्ड्स होते हैं, तो शेप वही होती है कि लेकिन वो एक साइड मिसिंग होती है, तो दैट्स बेंट एंड 120 डिग्रीज। चार की फिर डिफरेंट वर्जन होती है कि अगर तो चार बॉन्ड्स हैं, एंड दैट कुड इंक्लूड, मतलब एक डबल बॉन्ड हो सकता है, बस चार इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज हैं, ठीक है, सो द शेप वुड बी 109.5। उसमें फिर अगर लोन पेयर आ जाए, नाइट्रोजन के केस में होता है अक्सर के लोन पेयर आ जाए, नाइट्रोजन इज मेकिंग थ्री बॉन्ड्स, तो I mean the shape is pretty much the same, लेकिन वो top missing है, so the shape becomes trigonal pyramidal and the angle is 107 degrees। And then you've got इसी शेप के अंदर जैसा वाटर का मॉलिक्यूल होता है, उसमें दो लोन पेयर्स आ जाते हैं इंस्टेड ऑफ टू बॉन्ड्स ऑन दैट साइड, तो द शेप इज 104.5। तो यही तक रखते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक के अंदर इससे ज्यादा पांच बॉन्ड्स और छह बॉन्ड्स वाली शेप ऑर्गेनिक के अंदर आती भी नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए व्हाट्स द शेप ऑफ अ मॉलिक्यूल, ठीक है, हर कार्बन आटम के इर्द गिर्द शेप किस तरह होगी, लेकिन वो हम आइसोमर्स के अंदर आगे जाके डिटेल में वो डिस्कस कर लेंगे, खासतौर पे ऑप्टिकल आइसोमर्स में। अच्छा, सो फर्स्ट थिंग, व्हाट्स एन आइसोमर? इट्स द सेम molecular formula।
but different. So you have different, but they have different structural formulas. But the molecules having the same molecular formula, different structural formulas. That's what an isomer is. कि number of atoms एक जितने होंगे, सिर्फ क्या होगा कि उनकी arrangement different होगी. So the first one is they're known as structural isomers. अच्छा, structural isomers में the atoms are bonded differently. So the reason they have different structures is atoms are arranged and bonded differently. यानी उनको ना तोड़ के किसी और तरीके से arrange किया होता है. Atoms are arranged or bonded differently. ये सारा आपने ओलर्स में पढ़ा हुआ है, ठीक है. स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, उसमें 3 वर्जन आती हैं. द फर्स्ट वन, ठीक है, वर्जन नंबर 1, दे आर नोन एज ब्रांच और चेन आइसोमर्स. और चेन आइसोमर्स में होता ये कि आप बस उसकी जो कार्बन की चेन है, लेट्स से यू हैव अ मॉलिक्यूल एंड you've got the molecule has 5 carbon atoms, ठीक है. इसके साथ 3 H है, इसके साथ 2 H होंगे, इसके साथ 2 H, 2 hydrogens, and this has 3 hydrogens. अच्छा, so this one चेन आइसोमर्स, उसमें आप क्या करते हो कि 5 कार्बन एटम्स लाइन में कनेक्टेड है ना, तो आपने क्या करना है कि बस उसकी अरेंजमेंट चेंज कर दो. 4 कार्बन एटम्स को लाइन में कनेक्ट कर दो, 1 कार्बन एटम को बीच में ब्रांच कर दो, ठीक है. व्हाट एल्स कुड यू डू? यू कुड आल्सो डू के 3 कार्बन एटम्स को लाइन में और 1 कार्बन एटम को अच्छा, एक कार्बन एटम को उसके साइड पे आपने ब्रांचेस के फॉर्म में अलग कर दिया और वो एच आप उसके साथ लगा दो, ठीक है. इसके साथ काउंट करके 3 H होने चाहिए, इसके साथ 2 H होने चाहिए. दिस इज मेकिंग 3 bonds, so it should have 1 H and this should have 3 H's and this will also have 3 H's. इसके साथ 3 H होंगे, इसके साथ भी 3 H होंगे. This will have 3 H's, this will also have 3 H's. वो बीच वाला कार्बन है, उसके बॉन्ड्स पूरे हैं. अच्छा, ये दोनों चेन आइसोमर्स हैं. Now, one thing you have to be very careful about when you're making chain isomers is कि आपको पता होना चाहिए कि it's not a chain isomer. अक्सर लोग बताओ क्या करते हैं, वो वही मॉलिक्यूल ड्रॉ करते रहते हैं. तो इसमें एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना, I mean these three are completely different molecules, but the reason they are isomers is क्योंकि सारों का जो फॉर्मूला है ना, वो मेरे ख्याल से C5 और H12 है, ठीक है. सारों के पास एग्जैक्टली सेम नंबर ऑफ एटम्स है. इसका मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दूं कि आइसोमर्स इतने इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं. आइसोमर्स इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं कि होता ये मसला ही होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर कि व्हेन यू एनालाइजिंग समथिंग, ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई वायरस है या कोई भी है, कोई प्रोटीन है, कुछ भी है, तो आपको माइक्रोस्कोप के अंदर ना ये मॉलिक्यूल्स की जो शक्लें ना ये बनी हुई नजर नहीं आती. किसी ने आपको कोई पिक्चर नहीं दिखा रहा होता कि मॉलिक्यूल इस तरीके का है. द इंफॉर्मेशन दैट यू यूजुअली गेट आर बिट्स एंड पीसेस अबाउट द मॉलिक्यूल. तो फॉर एग्जांपल आपको पता लगा कि जी C5H12 है, तो आप फिर उसकी बेसिस के ऊपर ना आप फिर तुक्के लगाते हो कि मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर क्या होगा. तो ये स्ट्रक्चर्स जो होते हैं ना, दे आर ऑलवेज नॉट विजिबल टू यू. तो आप फिर उसकी बेसिस के ऊपर ना आप कहते हो कि जी अच्छा, ये इन्फॉर्मेशन मिल गई है कि इसके अंदर 5 कार्बन एटम्स एंड 12 हाइड्रोजन एटम्स हैं. हो सकता है आपने उसको कंबस्ट किया होगा और देखा होगा कि कितने कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई और कितना वाटर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हुआ है. अच्छा, उसकी बेसिस के ऊपर आप फिर गेस करोगे कि हो सकता है 5 कार्बन एटम्स लाइन में हो सकता है कि 4 लाइन में हो, एक इस तरह हो सकता है 3 लाइन में हो, 2. तो आप फिर उस मॉलिक्यूल के बारे में गेसेस करते हो. तो जितने भी ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आपने डिस्कवर किए आज तक, उनके जो स्ट्रक्चर्स आपको बने हुए नजर आ रहे होते हैं बुक्स वगैरह के अंदर,
ज्यादातर जो है वो गेस वर्क होते हैं, ठीक है, और वो फिर आइसोमर्स हेल्प करते हैं कि आपको उस मॉलिक्यूल के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मिलती है, फिर आप गेस करते हो कि अच्छा ये इस तरह भी हो सकता है, उस तरह भी हो सकता है, तो इसलिए आइसोमर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप वो गेस वर्क कर लेते हो ना, फिर आप उनकी ना प्रॉपर्टीज देखते हो कि अच्छा अगर ये वाला है तो उसकी इस तरह की बिहेवियर होना चाहिए, या ये वाला है तो उसका, तो इसलिए आइसोमर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्योंकि सबसे पहली चीज ही जो आप मॉलिक्यूल के बारे में फिगर आउट करते हो ना, वो गेस वर्क करके उसके डिफरेंट पॉसिबल स्ट्रक्चर्स आप फिगर आउट करते हो। अच्छा, एनीवेज कमिंग बैक टू दिस, ये है अब मैं एक मॉलिक्यूल बना रहा हूँ, ठीक है, एंड द मॉलिक्यूल इज लाइक दिस। अच्छा, दिस इज द मॉलिक्यूल, दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ द कार्बन एटम्स, ठीक है, अराउंड द मॉलिक्यूल। इसके साथ 3H होंगे, इसके साथ 2H होंगे, इसके साथ 1H होगा, इस वाले के साथ 3H होंगे, और इस वाले के साथ 3H होंगे। अब मुझे बताया कोई कि क्या ये मैंने कोई आइसोमर ड्रॉ किया कि नहीं किया ऑफ द सेम वन, है ये भी C5H12, बट कैन यू गेस इज दिस अ न्यू वन, और ये मैं पहले ड्रॉ कर चुका हूँ? सर कर चुके हैं। अच्छा, कौन सा वाला है ये? सर द फर्स्ट वन। नहीं, ये वाला है। नो द अदर वन। अच्छा, नेक्स्ट। ये वाला, ठीक है, ठीक है, एग्जैक्टली, तो यू हैव टू बी केयरफुल, ये दोनों एग्जैक्टली सेम है। तो अक्सर लोग ना इस तरह की बहुत सारी गलतियां करते हैं, व्हेन यू आर बीइंग आस्क्ड टू ड्रॉ आइसोमर्स, वो वही मॉलिक्यूल बार बार ड्रॉ कर लेते हैं। जस्ट रिमेंबर कि उसी मॉलिक्यूल की बेंट, ट्विस्टेड, इट्स द सेम मॉलिक्यूल, उसको बस आपने बेंड किया हुआ है, ट्विस्ट किया हुआ है, ठीक है, इट्स अ बेंड ट्विस्टेड वर्जन ऑफ द सेम मॉलिक्यूल। वो आप देख भी लो कि इसके अंदर 1 2 3 कार्बन आटम्स हैं, तो इसके अंदर भी 1 2 3 कार्बन आटम्स हैं, और ये तीसरे कार्बन आटम्स के ऊपर देयर इज अ CH3 ओवर हियर एंड अ CH3 ओवर हियर। तो इधर भी 1 2 तीसरे कार्बन आटम के ऊपर एक CH3 इधर है और एक CH3 इधर है। तो ये जो अरेंजमेंट है और ये जो अरेंजमेंट है, दैट्स एग्जैक्टली द सेम, इन दोनों में कोई फर्क नहीं है, ठीक है। सो दिस वन इज नॉट अ न्यू आइसोमर, यू जस्ट ड्राइंग द सेम मॉलिक्यूल। तो बस ये याद रखना कि उसी मॉलिक्यूल को बेंड करके, ट्विस्ट करके ड्रॉ करने से ना आइसोमर नहीं बनेगा, जब तक आप बॉन्ड तोड़ के उसको कंप्लीट एक नई अरेंजमेंट नहीं लेके आओगे ना, तब तक इट्स नॉट एन आइसोमर। तो इट्स अ ट्विस्टेड वर्जन ऑफ द सेम मॉलिक्यूल। इसी तरह लोग इसकी ट्विस्टेड वर्जन ड्रॉ करना शुरू कर देंगे, 5 कार्बन आटम्स लाइन में ना, वो क्या करेंगे, वो इस तरह ड्रॉ कर देंगे, ठीक है, ये 4 और लेट्स से ये 5, दिस वन। तो अगेन वो दैट्स नॉट ए नाइस वन, आपने बस उसको थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया, इधर से ये CH3 ऊपर की तरफ ले गए और CH3 नीचे की तरफ ले गए, सो दिस इज एग्जैक्टली द सेम। तो इसका ख्याल रखना जब भी आप ड्रॉ कर रहे हो ना स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, तो इसका ख्याल रखना है कि drawing the same bent twisted version of the same molecule would not give you a new isomer, it's going to be the same exact thing, ठीक है, ये क्लियर है सारों को? Yes or no, is this clear? जी सर। यस सर। अच्छा, अगले दो आसान है कि सेकंड, उसके अंदर भी ये वाला इशू आता है वैसे। सेकंड वाला, दैट्स योर पोजिशनल आइसोमर। नाउ व्हाट्स योर पोजिशनल आइसोमर? पोजिशनल आइसोमर के अंदर यू व्हाट यू डू इज कि किसी एक ग्रुप की ना जस्ट चेंज द पोजिशन ऑफ वन ऑफ द ग्रुप्स, एंड यूजली द ग्रुप इज द फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, लेकिन किसी ब्रांच की पोजीशन चेंज कर दो, ठीक है, जस्ट चेंजिंग द पोजीशन। सो फॉर एग्जांपल यू हैव दिस मॉलिक्यूल एंड OH जो है ना वो एंड पे लगा हुआ है, और इसके साथ नहीं बाकी H है, 2H और यहाँ पे 3H's। So this is the molecule, and this is over here your OH group,
बस क्या करना है कि इसकी पोजीशन चेंज कर दो. So what you can do is कि OH एंड पे लगा हुआ था उसको उठा के सेकेंड वाले पे लगा दो. अच्छा, फिर ये बताओ, ये वाला OH को उठा के मैंने इधर लगा दिया. मुझे तो ये तो ये तीसरा तो वाला है. सेम नहीं हो गया? ठीक है, एग्जैक्टली ये सेम हो गया. ठीक है, दीज टू आर द सेम. तो इस चीज का ख्याल रखना है कि डोंट ड्रॉ द सेम, और इसी को आप उठा के उल्टा करके रख दो तो यू गेट दिस. ठीक है, सो रिमेंबर कि इसकी दो ही पोजिशन आइसोमर्स होंगे. पहले पे भी लेके जाओगे ना तो इट वुड बी एग्जैक्टली द सेम एज दिस वन. तो इस चीज का ख्याल रखना है कि वही चीज सेम दोबारा ड्रॉ नहीं करनी. ऐसे बाकी इसके साथ पूरा कर लो. CH2. अच्छा, देन यू हैव द थर्ड वन. अच्छा, थर्ड वन इज दैट्स योर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर. नाउ रिमेंबर कि आइसोमर बनाते हुए ना यू हैव टू चेंज द स्ट्रक्चर. और वो किसी तरह भी चेंज कर सकते हो. यू डोंट, मतलब अगर वो अल्कोहल है तो जरूरी नहीं है कि वो अल्कोहल ही बनेगा. इट कुड बी एनीथिंग. ठीक है, सो you've got functional group isomers के sometimes what you can do is कि let's say you have a carboxylic acid. ठीक है, तो ये C2H4O2 है. You draw another molecule that's not a carboxylic acid. तो आपने फंक्शनल ग्रुप ही चेंज कर दिया. दिस वन इज ऑब्वियसली एन एस्टर. तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है और ये वाला जो है एस्टर है. इसके और भी बन सकते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स. व्हाट आई कैन डू इज इसको अल्कोहल और एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देते हैं कि डबल बॉन्ड O और H इधर रहने देते हैं और वो साथ वाले कार्बन आटम है ना OH लगा देते हैं. तो दैट्स आल्सो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर क्योंकि one end of this molecule is an aldehyde, the other one is an alcohol. अच्छा, तो और एक एक एंडलेस, इसको इसको मैं और भी उसमें कन्वर्ट कर सकता हूँ. व्हाट आई कैन डू इज आई कैन कन्वर्ट इट इनटू एन एल्कीन एज वेल. कि वो डबल बॉन्ड ना O से हटा के ना मैं डबल बॉन्ड इधर बीच में ले आता हूँ और एक OH लगाता हूँ यहाँ पे. अच्छा, ये OH इसका भी डबल बॉन्ड चला गया तो OH और H और H. अब ये वाला ये एक एल्कीन भी है एंड एट द सेम. डायॉल भी है. ठीक है, डायोल भी है, अल्कोहल भी है. और इस तरह ना वो कहानी चलती रहेगी. इट कुड बी कन्वर्टेड इनटू ईथर्स का कोर्स भी नहीं है, लेकिन आप और भी इसकी ना डिफरेंट अरेंजमेंट्स लेके आ सकते हो. तो आप सिंपली फंक्शनल ग्रुप ही चेंज कर दो, आप मॉलिक्यूल ही चेंज कर दो. कि पिछले वाले में हम फंक्शनल ग्रुप चेंज नहीं कर रहे थे, वो अल्कोहल था, अभी भी अल्कोहल ही है, लेकिन उसकी पोजीशन चेंज कर रहे थे. उससे पिछले वाले में हम सिर्फ कार्बन चेन के साथ ना आगे पीछे कर रहे थे. सो देयर थ्री टाइप्स ऑफ main isomers, positional functional group isomers, and you have your chain isomers. uh, और रियलिटी में अक्सर जो होता है ना, इट्स अ मिक्स ऑफ द थ्री. जब आप आइसोमर्स ड्रॉ करते हो ना तो अक्सर आप अगर तो क्वेश्चन में बड़े स्पेसिफिक हैं, इफ दे वेरी स्पेसिफिक इन द क्वेश्चन के पोजिशनल आइसोमर ड्रॉ करो या आइसोमर ड्रॉ करो, तो यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक अबाउट दैट. लेकिन अक्सर मॉलिक्यूल्स में ना आप बहुत सारी चीजें इकट्ठे कर सकते हो. मतलब आप उसका फंक्शनल ग्रुप भी चेंज कर सकते हो और उसकी उसकी चेन भी चेंज कर सकते हो एट द सेम टाइम. तो यू कुड डू मल्टीपल थिंग्स एट द सेम टाइम. अच्छा, ये तो खैर ये हो गया एक. अब यहीं पे कल हम उसका वो कर लेते हैं जो बाकी चीजें क्या करनी है वो स्टीरियो आइसोमर्स वगैरह वो हम कल कर लेते हैं. अभी क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए मैं दे देता हूँ, वो तो पोस्ट भी कर लेता हूँ कि अच्छा, ड्रॉ ये all three types of isomers for the following. अच्छा, और उनके ना वो ड्रॉ करने हैं स्केलेटल फॉर्मूलाज.
ठीक है, क्योंकि स्केलेटल फॉर्मूलाज बड़े इंपॉर्टेंट है। अक्सर क्वेश्चन स्केलेटल फॉर्मूलाज में ही चल रहे होते हैं, ठीक है। सो यू हैव टू प्रैक्टिस योर स्केलेटल फॉर्मूलाज। तो ये जो मॉलिक्यूल्स मैं दे रहा हूँ ना, इनके ड्रॉ करो। लेट्स से द फर्स्ट वन, नंबर ए, ये ब्यूटेनोइक एसिड। अगर नाम नहीं पता वैसे गूगल कर लेना, लेकिन पता होना चाहिए आप लोगों को। अच्छा, ब्यूटेनोइक एसिड बी इज अच्छा, इसके 3 ड्रॉ करने हैं। अच्छा, रिमेम्बर पोजिशनल, फंक्शनल ग्रुप और कौन सा तीसरा कौन सा था? चेन। चेन आइसोमर्स। ठीक है, तीनों का ड्रॉ करना है। और ये मैं इसमें क्लासरूम में ना पोस्ट कर देता हूँ, ठीक है। चल ठीक है, कल हमने करना है स्टीरियो आइसोमर्स, और नेमिंग भी होपफुली खत्म कर लेंगे कल, ठीक है। और फिर हम वर्कशीट करेंगे उसकी। ओके। चले, ओके, टेक केयर एवरीवन। अल्लाह हाफिज। ओके अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज़। हाफिज। सर ये रिकॉर्डिंग भी अपलोड कर दीजिएगा। ठीक है, मैं करता हूँ। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज।